دیکھیں مسئلے ابھی تک چل رہے ہیں اور مسئلے کا حل ابھی تک نکلا نہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک ہم مل بیٹھ کے کام نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ آپ کا تو مسئلہ جو ہے دیکھو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھو آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، نہ آپ سے ہو پا رہا ہے۔ کیا ٹینشن ہے؟ جب ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کب سے لگی ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب بھی ہم آتے ہیں کوئی نہ کوئی دیکھیں یار کام تو انہوں نے کبھی کیے نہیں ہیں ایسی، بس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کام ہوا ہے کبھی تو بتائیں آپ نے کبھی کام ارے تو یہ دیکھیں ان کو، یہ صحیح کہہ رہی تھی آپ، میں کیا کہوں بہن اب اس بارے میں، آپ دیکھیں۔ ہاں دیکھیں آپ ہی نے سب آپ لوگ کھا رہے ہو پی رہے ہو، سب سمیٹ رہے ہو، سب سمیٹ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات چھوڑیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، سب ہمیں پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ تمہارا مسئلہ، ان کی کیا مسئلے ہیں بھائی؟ مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ کون سے مسئلے تمہارے؟ چلو اٹھو ماں، بیٹھو، تم سنتے ہیں تمہاری بات بھی، سمجھتے ہی نہیں کوئی بات ہی۔ تم بیٹھو ادھر، اتنا سمجھایا میں نے۔ آپ یہاں آئیے، جی آئے ان کے جو بھی مسئلے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ یہ لو اپنا فون، اس میں دیکھو میں نے پیغام لکھ دیا ہے اور سارے کام کر لے ہیں۔ آپ یہاں آئیے اور آپ یہاں بیٹھیے۔ ہاں اب بتائیں آپ کہ کس کے کیا مسئلے ہیں؟ اب بتائیں آپ کہ کس کے کیا مسئلے ہیں؟ اللہ خوش ہے کہ آپ سب کو، مجھے آپ سب کے درمیان اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کس کے مسئلے ہیں، کیا تم بتاؤ؟ سر گیس کا مسئلہ، ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی ہے سر، اچھا، بڑے پریشان ہیں۔ اور تم؟ سر وہ کچرا نہیں اٹھ رہا ہے ہمارے علاقے میں۔ تمہارے علاقے کا کچرا نہیں اٹھ رہا، تمہارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی، تو یہ تم آ کے تم جو یو سی وغیرہ اس کو کہتے ہو یا صرف میرے پاس لے آتے ہو؟ وہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے کام کروں گا، میں نے اپنے ایز اے دوست، ایز اے فرینڈ تمہارے سارے کام کرنے ہیں مجھے، اس لیے کہ تم میرے کام آتے ہو، لیکن یہ ان لوگوں کا بھی فرض ہے، وہ جب تک نہیں کہیں گے تو کیسے ہوگا کام؟ وہ لوگ تو اپنے بس جیب خرچ نکال کے اپنے گولک میں، اپنے بینک میں ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہاں کوئی کام ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے کام ہیں۔ یہ تو تم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد تم لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کہاں ووٹ لیے ہم نے، کس کے لیے ووٹ ہم نے، کس سے ہم نے ووٹوں کی بھیک مانگی ہے اور کیا ہمارے کام ہیں، ان لوگوں سے ہم نے کیا وعدے کیے ہیں اور ہمیں ان کے کام آنا چاہیے یا نہیں، اور کون کون سے کام پہلے کرنے چاہیے، یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب رہتا ہے تمہارا اور میرا تعلق، تو ظاہر ہے بالکل صحیح ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ہر کام میں آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس ہر قوم موجود ہے، میں کسی قوم میں تفریق نہیں کرتا، خان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں اور سندھی سب ہیں، سب اور سب کے کام آتا ہوں میں، میرے نزدیک سب ایک ہے۔ میں نہیں جانتا ان کی زبانیں، میری زبان کیا ہے، ایک لفظ جانتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہیں اور اس کے بعد یہ ہیں پاکستانی۔ اب پاکستانی ہونے کے ناطے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے صرف دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک بریانی کے پلیٹ کی خاطر اپنے ووٹ تک کو بیچ دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے کام ہوں گے یا نہیں، اور جب وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور وہ تمہاری طرف نہیں آتے ہیں تو پھر تم میرے پاس آتے ہو، اور آنا بھی چاہیے کیونکہ میرے جو لیڈر ہیں ان لیڈروں نے مجھے یہی سبق دیا ہے کہ کسی کا بھی کام ہو تمہیں کام کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے تمہیں وہ کام کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں سے ان کے نجات دلانی ہے اور ان کے کام آنا ہے۔ اب
तुम्हारे मोहल्ले में गैस नहीं आ रही है, ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे मोहल्ले में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, कचरा नहीं उठाया जा रहा है, तो ठीक है, इसके लिए भी हम करेंगे। लेकिन अब तुम्हें समझना चाहिए कि कौन तुम्हारे हैं और कौन नहीं है। उन लोगों के पास यकीनन तुम गए होगे और उन्होंने आपको गोली दे दी होगी कि हाँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे तुम सख्ती से पूछ सको कि तो जब वोट देने जब तुम आते हो तो हमसे कैसे कैसे वादे करते हो, कैसे कैसे सब्ज़ बाग दिखाते हो। और आज हमारा इलाका, हमारा जो जगह हम रहते हैं, मोहल्ला, उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने की भी इनको फुर्सत नहीं है। और जब कचरा कूड़ा होता है तो फिर तो इस मौके पर मुझे मेरे लीडर याद आते हैं जिन्होंने बेलौस खिदमत की है, सबकी बेलौस। मैं इनको जितना प्यार करूँ कम है, और इनकी वजह से ही मैं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गरज के आप सबकी खिदमत करता हूँ, क्योंकि ये सबक मुझे मेरे इन लीडरों ने दिया है जो अजीम थे, और उनकी अज़मत को आज भी लोग सलाम करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि कहाँ गैस नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और किसके यहाँ कूड़ा कचरा नहीं उठाए उसके लिए भी करेंगे, और भी कुछ है काम उसके लिए भी करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई लालच नहीं है। मैं तुमसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं इन लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त रखता हूँ जो वोट हासिल करके भी बेइज्जत रहते हैं, क्योंकि मैं बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी लालच के अपने लोगों के काम आता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, उनके काम सॉल्व करता हूँ। और ये लोग जो लालच रख के तुम्हारे पास आते हैं और तुम इनको वोट देते हो और ये तुम्हें भूल जाते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, इसलिए कि तुम मेरे इलाके के लोग हो। कौन हो, क्या हो, नहीं, मेरे भाई हो, सिर्फ मेरे भाई हो। मुसलमान हो, सच्चे पाकिस्तानी हो। हाँ, अगर तुम सच्चे पाकिस्तानी हो और मेरे अगर कोई काम आ सकते हो तो यही कि जितने लोग हैं मजबूर बेकस, जिनके मोहल्लों में, जिनके इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है, तुम उसकी निशानदेही करो, मुझ तक पहुँचाओ और मेरे साथ चलो, या मैं जो तुम्हें उस काम से मुताल्लिक कोई काम बताऊं वो तुम करो। क्योंकि एक आदमी, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिलकर पूरे इलाके तो क्या पाकिस्तान को भी सजा सकते हैं। तो मुझे आप सबका साथ चाहिए, सबका साथ। कोई लालच नहीं है मुझे, कोई भी गरज नहीं है, कोई वोट मांगने नहीं आऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं, मुझे वोट से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा काम है खिदमत करना, खिदमत करना अपने लोगों की, जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जो मेरे काम आते हैं, मुझे दुआ देते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकता, और उनकी मुश्किलों को मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े, या कहीं भी जाना पड़े, या कितने बड़े बड़े लोगों के सामने बात करनी पड़े। और अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त रखता है, वो इज़्ज़त आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे दी है। आप अपना समझ के आते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है आप लोगों के लिए कि मैं आपके काम आऊँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और अल्लाह ताला मेरे काम को आसान बनाता है, और हमारे आपके सबके काम हो जाते हैं, हो जाते हैं हमारे सारे काम। कौन करता है, कौन करता? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। और ये किससे सीखा मैंने? अल्लाह से, शरीयत से, और उसके बाद अपने लीडरों से। ये लोग किसी तौर से भी इज़्ज़त के काबिल नहीं है, ये हैं इज़्ज़त के काबिल। इन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, लेकिन अपनी आवाम के लिए इन्होंने वो सब कुछ किया है जो आवाम का हक़ है। और आज ये मर के भी ज़िंदा है, हर तरफ नारा गूंजता है, बीबी ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है। सिर्फ इसीलिए और इसी नाम पर इन लोगों को वोट भी मिलते हैं। अब वो काम करें ना करें, मुझे उससे कोई गरज नहीं, लेकिन वो लोग मेरे इन लीडरों के मुकाबिल कुछ भी नहीं है। चाहे वो कुछ भी बड़ा ओहदा रख लें,
लेकिन मेरे इन लीडरों के मुकाबले में वो कुछ नहीं है। क्यों? कि वो लोग अपनी गरज और लालच के तहत आप लोगों के पास जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने आप लोगों से वोट लिए हैं और आप लोगों के वोट से ही हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। मेरे लीडर बेलौस थे, काम किया उन्होंने, जानें कुर्बान किए, चाहते तो जान बचा सकते थे, कोई भी बात करके माफ़ी मांग कर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ना सर झुकाया और कभी किसी से डरे नहीं। जान चली गई लेकिन आन नहीं गई, और इसीलिए मैं इनका पैरोकार हूँ, इनका मानने वाला हूँ। ये मेरे लीडर हैं, मेरा आइडियल हैं, और मुझे जो रास्ता दिखाया है वो इन लोगों की बातों ने और इन लोगों के अमल ने दिखाया है। और आज माशाल्लाह मैं खुश हूँ कि आप लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बदौलत मैं इस काबिल बना हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इनके काम आता हूँ। और ये बेचारे दोस्त अहबाब मेरे, जितने मेरे इलाके के लोग हैं, सब मुझे इज़्ज़त से देखते हैं, इज़्ज़त देते हैं, और मैं इनके काम आराम से करता हूँ। मुझे नहीं पता कि काम कैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हक़ का रास्ता और सच का रास्ता सीधा होता है, और उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। अल्लाह ही मेरी मदद करता है, और मैं आप सब के काम करके सुरखरू हो जाता हूँ। तुम यकीन मानना, जब मैं किसी का भी कोई काम करता हूँ तो मुझे सुकून की नींद आती है। लेकिन जिन लोगों ने तुमसे वोट लेकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर बड़ी बड़ी दौलतें और जायदाद बना ली हैं, उनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती उनको। वो बेसुकून लोग हैं, इसलिए कि उन्होंने लोगों का सुकून तबाह किया है। अपनी लालच, अपनी गरज के हिसाब से उन्होंने आपके सामने सर तो झुका दिया, सिर्फ लालच के तहत, और उसके बाद सर तो क्या ऐसा उठा कि वो लात मारते हैं आपकी सोचों पर, आपकी बातों पर, और आपको गोली दे देते हैं। फिर आप जब मेरे पास आते हैं, मैं सुरखरू होता हूँ कि मैं कुछ न होने के बावजूद भी उन सब से बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मेरी मदद करता है, और अल्लाह ताला की मदद से ही आप सब के काम अंजाम पूरे हो जाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ। परेशान मत हो, मेरा साथ दो, और मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर हूँ। तुम्हारे सारे काम तुम्हारे साथ मिलकर करूँगा। लेकिन ये भी देख लेना, मैं अपना काम किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं बताता। अपना काम मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, हर तरह से कर सकता हूँ और करता हूँ। तुम बेचारे नहीं कर सकते, तुम्हारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, तो तुम ज़ाहिर है मेरे पास आते हो, तो मेरा फ़र्ज़ पूरा बनता है कि मैं तुम्हारा काम अपने काम की तरह अंजाम दूँ, कि जैसे तुम्हारा काम नहीं बल्कि मेरा काम है। मेरे इलाके का काम मेरा काम है, मेरे इलाके की सफाई मेरे घर की सफाई है। मेरे लोगों की गैस बिजली नहीं आना तो मेरे घर की परेशानी है, और इस घर को मैं बहुत बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ, मोहब्बत का, भाईचारगी का, खुशबू का, और एक दूसरे की इज़्ज़त का। यही माशरा हमें इज़्ज़त देता है, बस। और मुझे कुछ नहीं कहना, अल्लाह हमारे साथ है। अरे बाबा मैं क्या करूं? क्या करूं? अच्छा, आपको पता भी है कि आपकी वजह से मुझे क्या क्या बातें सुनी। अरे बाबा तुम बेटी बन के रहो, बेटी हो, बेटी बन के रहो, तुम मेरी शिकायतें क्यों सुनती हो? मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन लोग जो मुझे आगे सुनाते हैं, आपको कुछ खबर है कि नहीं है? अरे बाबा मुझे नहीं पता कि लोग क्या समझते हैं। मैंने क्या किया है? मैं अपने उसूल के लिए लड़ता हूँ तो मैं बुरा हो गया? मैं अगर कुछ बात कह दूं कि यहाँ सफाई नहीं हो रही, तुम लोग गंद नहीं फेंको, तो मैं... अरे बात आपकी ठीक है, मैंने कब कहा आप गलत है, लेकिन वो नौकर है, उसके साथ थोड़ा सा... हाँ नौकर तो है, लेकिन क्या कि सफाई सही नहीं मेरी बात सुने, आप सही हो के भी गलत साबित होते हैं, क्योंकि
वो सारे एक हैं। अरे बाबा मैं पैसा किस चीज का देता हूँ उसको मुझे बताओ तुम, उसको मैं पैसा किस चीज का देता हूँ? सफाई का देता हूँ? बिल्कुल पैसे देते हैं, लेकिन हम पैसे देके किसी को खरीद तो नहीं लेते। देखिए वो अपना काम, ये है कि आप मेरी बात सुने तसल्ली से, ठीक है? मैं बता रही हूँ आपको, वो मुलाजिम है, वो भी बेचारा किसी का अपना काम सीधा करता नहीं है, शिकायतें तुझे लेके आ जाता है। अरे शिकायत की बात नहीं, वो तो बेचारा कह रहा था कि अरे बाबा देखो ना, कब से उसे समझा रहा हूँ, उसकी समझ में नहीं आती बात। अरे वो बेचारा तो, अरे बाबा तुम कौन है? मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि तुम बाप होकर अपनी बेटी के साथ कैसे बात करते हो। जी सरदार साहब मैं यही समझा जी, रही थी, आप समझे? मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसका और हर लिहाज से जो यानी कि इनकी शख्सियत है, पर्सनालिटी है, उसके मुताबिक मैं इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं अपने घर में भी किसी की भी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल, ये मेरी बेटी है और ये मैं इसके लिए अच्छी सोच रखता हूँ कि ये अच्छा करे। अच्छा करे, हाँ, ये मेरी बेटी है। सही, अच्छा करे तो, लेकिन बेटी के साथ थोड़ा नरम रवैया होना चाहिए। औरत औरत होती है, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो या माशूका हो या कोई भी हो, औरत मोहब्बत की भूखी होती है। औरत माँ होती है, माँ से जो हम सीखते हैं ना, माँ मोहब्बत सिखाती है। दुनिया की हर माँ चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को मोहब्बत सिखाती है। तो वो बाप में क्यों नहीं होती? तुम्हारी भी माँ होगी यकीनन, उसने भी तुम्हें मोहब्बत सिखाई होगी, एहसास दिलाया होगा कि फीमेल होती है, लड़की या औरत लड़की औरत होती है, ये कमज़ोर होती है, इसके साथ बहुत मयाना रवैया इख्तियार करनी पड़ती है और उसको हक देते हैं कि तुम जो बात करो सलीके से करो। हाँ, इतना कह सकते हो, लेकिन उसको हम दबा नहीं सकते, उसको हम दबा नहीं सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। उसकी तरबियत के लिए हम उसे डांट सकते हैं। और ये लड़की, इसमें बहुत टैलेंट है, बहुत सलाहियत है। तुम्हारे साथ ये क्यों करती है, क्यों अकड़ कर बात करती है, ये मैं समझ सकता हूँ। क्यों कि तुम भी इसका ख्याल इतना नहीं रखते जितना कि बाप रखता है। क्या ज़रूरत है इसकी, तुम नहीं रखते। कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए तुम नहीं रखते। ये कोई भी चीज़ तुमसे अगर मांगती होगी तो तुम डांट के कह देते होगे हाँ दे दूंगा। नहीं, डांटो नहीं, प्यार से कहो कि बेटा आज नहीं, शाम को मैं ले आऊँगा या कल मैं ले आऊँगा। तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होगी और वो तुम्हें फिर उसी इज्जत से, उसी निगाह से देखेगी। अब तुम डांट कर कहोगे तो जाहिर है वो भी कहेगी कि एक तो डांट रहा है और दूसरा मेरी बात भी नहीं मान रहा। अगर बात नहीं मान रहा तो मुझसे प्यार से बात करे। कब समझोगे तुम लोग, कब समझोगे? तुम लोगों ने औरत को पाँव की जूती समझ रखा है, तुमने। गलत है ये। इज्जत करो, इज्जत मिल करोगे, इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। जिसकी माँ बहन नहीं होती है ना, उससे पूछो कि क्या हालात होते हैं जब वो रिश्ते नहीं होते हैं हमारे पास, तो वो कैसे गुजारते हैं। जिनकी बेटी नहीं होती है, बहन नहीं होती है, तो उनसे पूछो उनसे कि उनके दिन कैसे गुजरते हैं, वो अपने माहौल को कैसे बनाते हैं और अपने किस तरह रहते हैं बगैर बहन बेटी के। लेकिन तुम जैसे लोग जो समझ नहीं सकते, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में बहन बेटी भी लिखी है, लेकिन तुम अकड़ से अपने माहौल को ख़राब करते हो। एहसास नहीं करते कि माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। हक रखती है वो माँ प्यार का, और ख़ास तौर से बेटी तो और बहन, ये तो प्यार की भूखी होती है। इनका अपना कोई घर नहीं होता, ये दूसरों के घर में जाकर उनकी खिदमत करती है। और अच्छा घर मिलता है तो उनके नसीब खुल जाते हैं, और नहीं मिलता तो उनके नसीब बंद हो जाते हैं। उनके दिल से पूछो यार, पूछो उनके दिल से कि वो कितने कर्ब में रहती हैं। वो अपने दुख, अपनी तकलीफ अपने बाप को नहीं बताती अपने बाप को कि कुछ हो ना जाए, मेरा बाप परेशान ना हो जाए।
कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए। अपने घर को बचाने के लिए बहुत बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेती है बहन बेटियाँ। और तुम्हारी इतनी अच्छी बेटी है और तुम इस अदब से, एहतराम से, अखलाक से बात भी नहीं कर सकते। हैरत है मुझे यार, हैरत है कि अल्लाह ताला किन किन लोगों को बहन बेटी दे देता है जो उसको इज्जत भी नहीं करते हैं। तुम बताओ, तुम अगर बहन या बेटी होती और तुम्हारा बाप या भाई इस तरह जिल्लत से बात करता तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अंदर मोहब्बत जागती? तो मोहब्बत से बात करते? नहीं, तुम्हारा दिल कट जाता, दुख और तकलीफ से भर जाता। पूछो उसके दिल से, वो ये नहीं कह रही है कि मत लाओ, वो चाहती है कि अखलाक से बात करो। तुम्हारी मजबूरी को समझती है वो कि तुम ला सकते हो या नहीं, लेकिन कम से कम अखलाक से तो बात करनी चाहिए, मोहब्बत से तो बात करनी चाहिए। ये अखलाक और मोहब्बत अगर उससे घर में मिल जाए तो हमेशा याद रखती है, क्योंकि ये अखलाक, ये मोहब्बत उसको अपने शौहर क्या मिले ना मिले, लेकिन यहाँ की अखलाक और मोहब्बत उसको याद रहती है। शौहर तो गैर होता है, उसका खून नहीं होता, वो एक अनजान आदमी होता है, वो उसकी बात को, नफ्सियात को नहीं समझता। वो तो अपनी अकड़ रखता है यार, अकड़ रखता है, लेकिन बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को मोहब्बत से रखता है, उसके दुखों को अपना दुख समझता है, फूलों की तरह रखता है कि पता नहीं उसका नसीब कैसा होगा, कैसा घर मिलेगा उसको। कम से कम मैं तो इतना प्यार दे दूं कि वो पछताए नहीं कि मुझे घर में भी यही माहौल मिला और मेरे अपने ससुराल में भी यही माहौल मिला। कम से कम तुम्हारे लिए वो इज्जत से रो तो सके, याद तो कर सके, दुआ तो कर सके। तुम लोग नहीं सुधर सकते। जिनकी बेटियां नहीं है उनके दिल से पूछो। उनके दिल से पूछो जिनकी बहन बेटियां नहीं होती है, क्या कहूँ। मैं क्या कहूँ तुम लोगों को। पूछो उनसे जाके जिनकी बहन और बेटियां नहीं होती है कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। पूछो उनसे जाकर कितनी तकलीफ पे रहते हैं, तरसते हैं वो किसी की बहन बेटी को देखकर तड़पते हैं कि हमारी बहन या बेटी नहीं है, काश हमारी भी बेटी होती। कब सुधरोगे तुम लोग यार, कब तुम्हारे जहन में ये बात आएगी, कब तुम्हारे जहन में ये बात आएगी, कब समझ सकोगे रिश्ते, सच्चे रिश्ते, खूनी रिश्ते, वो रिश्ते जो तुम्हारे लिए 24 घंटे दुआएं देते हैं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बाप को खुश रखना, सेहतमंद रखना। हम आज हैं, कल नहीं हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, हमारे बाप को कौन संभालेगा। वो रो रो के दुआएं मांगती हैं, तो इसके हिसाब से तुम प्यार नहीं दे सकते, तुम उसको प्यार नहीं दे सकते। उसको मजबूर मत करो कि वो यहाँ भी रोती रहे और वहाँ भी रोती रहे। अगर वहाँ उसको तकलीफ होगी तो वो अपने बाप के प्यार को देखकर हमेशा खुश तो रह सकेगी। उसको याद तो आएगा कि मेरा बाप कितना प्यार करता था, मेरा बाप कितना गरीब था, कुछ नहीं ला सकता था, लेकिन प्यार उसने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। और यही प्यार इंसान की असलियत